A very good afternoon, everyone. So today we have nutritionist Yash who would be presenting Archana's case study. He would be taking us through the client's background, client's goal, the journey, and how he helped achieve the client his journey, her journey. Over to you, Yash. Good afternoon, everyone. Thank you so much, Manpreet. Today, I will be talking about the case of Archana ma'am. So let's jump into the case study. Here I will tell you some history. सबसे पहले हम इनके हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, इनकी करंट कंडीशंस के बारे में बात करेंगे एंड कैसे हमने इनका ट्रांसफॉर्मेशन किया है, पूरी जर्नी हम इस केस स्टडी में डिस्कस करने वाले हैं. So सबसे पहले I will start with कि like picture this like you are 40 and mother of two and like always tired, knee hurt with every step, can't chase kids without getting out of the breath. You think this is just getting old. So ऐसे ही कुछ इनकी स्टोरी थी. लाइक अर्चना मैम स्टार्टिंग में इनका वेट वॉज 69.6 kgs, 154 centimeter tall and 43.2% body fat. So like constant knee pain इनके इस जर्नी में रहा है. बट in the 2.5 months की ये journey है, like at the wild fit, she lost 7 kgs, got super fit and got her energy back. Today her simple story can shows like anyone can change. Okay, so let's moving forward, like if we go to the history here part. So like we can talk about her struggle here, like उनका क्या struggle था. Like अर्चना मैम like she wasn't lazy, बस उनका था कि उनका motivation थोड़ा down हो गया था because all these conditions. So like let's start with one first point जो कि था उनका knee hurt. So like walking felt like punishment for us, like common in extravert cases में होता है ये. And always tired, no energy for fun, just surviving daily courses, not breath, like out of breath होते थे वो बहुत जल्दी, like stairs is equal to nightmare for her. Like too much body fat, 30 kg of body fat mass, like put in so much of stress on her joint. So we can say like extra fat releases chemicals causing inflammation. That's why like knee hurts more. Like her VO2 max was just as an average. So meaning its का meaning ये था कि like उनका poor oxygen usage था during the activity. So ये सारे उनके challenges थे. So here are the case conductors like me and Firoz sir. We started handling this case and we design a proper pattern according to her, like जैसा उनका condition था उसके accordingly. Like nutrition plan में major focus था उनके inflammation पे, joint support पे, energy पे and उनका meal portion balance रखा था इस journey में, like from basic level to advanced level. तो सारी चीज़ें हमने इस जर्नी में प्रॉपर बेसिस ऑफ ट्रैकिंग, प्रॉपर बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी, उनकी कैसी कंसिस्टेंसी थी एंड वो सस्टेनेबल रहे वो पूरी उनकी लाइफ टाइम तक. तो फोकस इस पे ही था. लाइक उनका वर्कआउट पैटर्न भी इसी बेसिस पे डिजाइन किया गया था. लाइक इन हर अबाउट हर नी कंडीशंस, लाइक लो इम्पैक्ट बेस्ड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थी. मोबिलिटी एक्सरसाइजेस पे हमने वर्क किया था. ग्रेजुअली देन प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे हम गए थे धीरे धीरे करके. सो दिस आर सम highlights of the case. And moving forward, like we can you can see here on the screen also, like the weight was 69.6 and the current was 62.6. Here is the muscle mass 21.6, from current is 21.1. So like reducing the body fat percent from 43.2 to 38.8%. So this is the body analysis report. Here you can see. Then moving forward, the fitness assessment report. So like फिटनेस असेसमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखा था हमने इन टर्म्स ऑफ की फ्लेक्सिबिलिटी टेस्टिंग में, फ्रॉम फेल टू पास रेशियो. ब्लड प्रेशर इज द नॉर्मल साइड ओनली इन द स्टार्ट एंड देन लाइक जो स्टेप अप लाइक रेस्टिंग हार्ट रेट था वो बिलो एवरेज से धीरे धीरे करके हम इसे एवरेज तक लेकर आए थे इन द फिटनेस टेस्टिंग. So moving forward, you can see here the evaluation. So Archana ma'am said like she wants to live for herself, live for her kids. So not much crash diet के साथ. So here as a team, like at the Wildfit here as a team, me and Firoz sir made a plan कि like how we can
कि उनको ये सारी चीजें इन रेस्पिरेटरी फिटनेस, मस्कुलर एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी इसमें इंप्रूवमेंट दिखे बाय द टाइम. Then we can say कि moving forward the challenges where she failed कि like मैनेजिंग द क्रॉनिक नी पेन के साथ में उनको ओवरऑल हेल्थ, ये भी एक गोल था कि लाइक नॉट जस्ट नी पेन, हमें वेट कम करने पे भी फोकस करना था यहाँ पे ताकि उनके नी पे लोड कम हो पाए. सो दिस आर द चैलेंजेस कि इनके साथ हर एक एवरी स्टेप वी हैव टू मेक श्योर कि इनके नी पे लोड ना आए एंड साथ में उनका प्रोग्रेस भी हो पाए इन टर्म्स ऑफ फैट मास, फैट परसेंट एंड विद टर्म्स ऑफ द वेट भी. तो ये सारे पैरामीटर्स पे ओवर द 4 वीक्स हमें इनहेंस किया न्यूट्रिशन प्लान में धीरे धीरे करके. जैसे जैसे उनका वेट कम होता था वैसे वैसे हमने प्रोटीन इंटेक पे इम्प्रूवमेंट किया था बाय द टाइम. हर वर्कआउट सेशंस में हमने धीरे धीरे वेट्स ऐड करना स्टार्ट कर दिया था कॉर्ड्स लाइक स्क्वाट्स बेस्ड एक्सरसाइजेस में. तो ये सारी चीजें थी जो हमने वर्क किया है इन दिस जर्नी. सो वेयर द चेक पॉइंट वॉज कि लाइक हमने अर्चना मैम को मॉनिटर किया था फॉर विद द मोबिलिटी प्रोग्रेस ओवरऑल वेलबींग के साथ में, ensuring her plan remains safe, effective and aligned with her progress. So the next we moving forward the overview of nutrition. So she used to follow the proper eating routine 3 meals a day, where 2 small meals थे उनके इसमें, where throughout the day she used to keep her energy level steady, supports her weight loss and her meal focus on nutrients dense anti-inflammatory foods हमने ऐड किए थे in this case where and her appetite was moderate. Like she prepares a simple meals जहाँ पे not ज़्यादा time ना लगे to prepare that meals. So she enjoys the home cooked meals. So उसी पे हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया था, वो ज़्यादा कुछ बाहर का खाते भी नहीं थे. So that is the advantage for us. ठीक है. So ये सारे पैरामीटर्स थे जहाँ पे हमने वर्क किया था इस जर्नी में. सो फिजिकल एक्टिविटी लाइक 3 to 4 days सेशंस थे उनके वीक में, लाइक फोकस ऑन द लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस, जॉइंट फ्रेंडली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेयर हर वर्कआउट वर डिजाइन टू इम्प्रूव हर नी स्टेबिलिटी, मोबिलिटी एंड ओवरऑल स्ट्रेंथ विदाउट ओवरलोडिंग हर बॉडी. सो इंटेंसिटी हमने लो ही रखी थी स्टार्टिंग में, उस बेसिस पे हमने कैलोरीज भी सेट किया था इनके प्लान में. सो the next thing is कि managing stress because of कि like she was a mother, she is a mother of 2 children, so उनका थोड़ा stress भी रहता था with the work life and दोनों balance करने के लिए. So हमने थोड़ी relaxations के techniques practice किए थे to prioritize her sleep, तो ताकि उनके 7 to 8 hours of sleep complete हो throughout the everyday basis पे. एंड वहाँ पे उनके स्लीप में थोड़ा स्ट्रेस लेवल्स में भी रिडक्शन देखा था हमने, साथ में जॉइंट में इन्फ्लामेशन भी कम हो रहे थे बाय द टाइम. सो कुछ करंटली मेडिकेशंस एंड ऐसा कुछ देयर इज नॉट सच थिंग, कोई लाइक शी इज नॉट यूज्ड टू टेक स्मोकिंग ड्रिंकिंग, ऐसा देयर इज नॉट सोशल हैबिट विद हर, सो दैट इज वन एडवांटेज फॉर अस. देन मूविंग फॉरवर्ड, सो जो इनिशियल चेंजेस थे इन द न्यूट्रिशन प्लान दैट वाज सो बेसिक्स टू जो उनके लाइफस्टाइल से मैच हो, जो उनके ट्रेनिंग रूटीन से मैच हो. सो ऐसे हमने कुछ ट्रेनिंग चेंजेस किए थे. सो सप्लीमेंटेशन जो हमने यूज़ किया था इनर केस, जो सबसे पहले ओमेगा 3, देन मैग्नीशियम, विटामिन सी, देन जैसे ही ल्यूफिक्स इंट्रोड्यूस हुआ था देन हमने ओमेगा 3 स्टॉप करके ल्यूफिक्स ऐड किया था इनर प्लान एंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एल-कार्निटिन, बिकॉज एट वन पीरियड लाइक उनका वेट भी स्टक हो गया था. सो देयर इज अ लिटिल बिट एल-कार्निटिन विद द हेल्प ऑफ वी विल स्टार्ट अगेन विद द वेट लॉस प्रोसेस. सो लाइक यहाँ पे in the between of like 64-65 kgs where we got to stuck, our progress was stuck there. So यहाँ पे हमने वर्क किया था with these supplementations in this journey. So you can see here the brief of the supplementations to like omega 3 we all know for the anti-inflammatory properties where which help in the reducing the joint pain and stiffness, crucial for someone like Archana ma'am who is managing her knee discomfort. They also support like heart health में भी support कर रहा था साथ में, like improve overall inflammation in the body too. So magnesium उनके already like फंक्शन, मसल फंक्शन, बोन हेल्थ, रिलैक्सेशन में हेल्प किया था. लाइक फॉर अर्चना मैम मैग्नीशियम कैन हेल्प विद द मसल रिकवरी टू, बिकॉज उनकी रिकवरी भी बहुत स्लो थी इन दैट केस. सो रिड्यूसिंग मसल क्रैम्प्स एंड टेंशन, लाइक प्रोमोट्स बेटर स्लीप क्वालिटी, एज मैंने बताया था कि उनका स्ट्रेस लेवल थोड़ा आया था जिससे स्लीप भी इम्पैक्ट हो रही थी बाय द टाइम. सो यहाँ पे हमने लाइक मैग्नीशियम इंट्रोड्यूस करके सारे पैरामीटर्स पे वर्क किया. देन आई एडेड द विटामिन सी एज एन एंटीऑक्सीडेंट दैट supports the immune function and aids to the collagen production in the body, which is crucial for joint health too. So this is the function like G supplements used. Then L-carnitine, obviously the supplements where we
like body uses the fat as a energy source which can support the weight loss and fat metabolism. So our goal was reducing fat too, like हमें intensity नहीं बढ़ा सकते थे. So because of that we introduced the L-carnitine which helps in the improving the stamina in this progress. So moving forward we can see the workout and safe step ups जो मैंने उनको बताया था कि कोच ने फिरोज सर ने उनको बताया था कि rather than workout क्या और क्या हम कर सकते हैं in this journey. Yes, sir. So easy walks, light strength, like ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस उनको इंट्रोड्यूस कर रहे थे थ्रू आउट द I वर्कआउट did सेशंस भी. actually. सो वहाँ पे प्रोग्रेस हुआ इन टर्म्स ऑफ बोलो ना ट्रेनिंग क्या हुआ? बूस्टिंग एंड VO2 मैक्स भी उनका धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा बाय द 12 वीक्स के पीरियड में. सो द लेवल्स अच्छा, इज द okay, फाउंडेशन okay. एंड मेटाबॉलिक फिक्स वेयर वी currently working on the metabolic fix where basic supplement stack जहाँ पे मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया था in this case. So this is the starting point of weight training, like 3 days of strength and 2 days of easy cardio हमने इंट्रोड्यूस किया था इनके सेशन में. So without causing any injury in the future. So प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग बूस्ट हमने हमारा फोकस था कि VO2 मैक्स को बूस्ट करना है बाय द टाइम. सो बिकॉज ऑफ दैट वी इंट्रोड्यूस दिस ट्रेनिंग पैटर्न. सो मूविंग फॉरवर्ड लाइक यू कैन सी जैसे मैं आपको so this is a nutrition week 1 or 2 का nutrition plan है where you can see the BCA changes also, like from 69.6 then 62.6 kg, then slowly moving forward to body fat like 43.2 to 38.8. Fat only is at 30.1 then 24.3 पे गया था. So these are the changes जो हमने देखे थे in the BCA composition analysis and the nutrition plan. So and if you moving forward the workout pattern, the fitness category we from goes to the average to superior. So यही nutrition वर्कआउट प्लान है जो हमें हेल्प किया इन दी जर्नी. फ्रॉम ब्लड प्रेशर भी इसमें बहुत हेल्प हुई थी, लाइक 114 to 100 तक हम लेके गए थे. सो हेल्थियर हार्ट. सो स्क्वाट्स भी लाइक 25 से 37 की रिपीटेशंस तक हम मैम को लेके गए थे विद द 8 kg एडेड वेट विद दिस ट्रेनिंग पैटर्न. सो यहाँ पे हमने उनका वॉक भी टेस्ट किया फ्रॉम 16 मिनट टू जिसे हम टारगेट देते कि जो फर्स्ट टारगेट था उनका 100 कैलोरीज उनको बर्न करना है. सो शी टेक 16 मिनट्स इन द स्टार्ट. देन स्लोली जैसे हमने उनको लाइक एवरी मंथ जब हम फिटनेस टेस्टिंग ट्रैक करते थे विद दिस वर्कआउट पैटर्न, सो वहाँ पे उनका टाइमिंग 14 मिनट्स तक चले गया था. सो हर बायोलॉजिकल एज भी ड्रॉप हो गई थी फ्रॉम 44 to 33. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस ट्रेनिंग पैटर्न हियर. देन मूविंग फॉरवर्ड, सो here is more of the week 4 to 6 of nutrition plan. So फ्रॉम बेसिक से लेकर लाइक धीरे धीरे करके जैसे मैंने प्रोटीन इंटेक इंक्रीज किया इन अ जर्नी. सो यहाँ पे यू कैन सी ऑन द स्क्रीन विद द सप्लीमेंटेशन रिज्यूम वेयर यू कैन सी द ओमेगा 3, मैग्नीशियम, विटामिन सी, L-carnitine, इनर फिक्स L-carnitine एंड स्लोली कार्ब साइकिलिंग भी स्टार्ट किया था इनके डाइट में विद दैट पॉइंट. So this is the week 4 to 6 workout pattern as shown on the screen. Not much mobility drills पे ज़्यादा focus था हमारा and not much of the high intensity trainings. So moving forward, so peak week where now this is where the Archana ma'am started feeling more happy, more energy. Like she started playing with her kids and with the no pain. उनका नी पेन पूरा ही चले गया था. लाइक स्लीप क्वालिटी काफ़ी डीप हो चुकी थी, 7 to 8 आवर्स की स्लीप थी. लाइक एनर्जी स्ट्रांग हो गई थी साथ में. सो लाइक यहाँ पे हमने देखा कि नाउ वी कैन मूव टू सम सॉर्ट ऑफ हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग टू. तो धीरे धीरे करके हमने इनकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज की थी विद द जर्नी. सो लाइक यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ कि वाई शी वॉन, लाइक 3 इजी सीक्रेट्स थे जहाँ पे उनके लिए हमने क्रिएट किए थे. लाइक हर मेड फॉर हर, लाइक उनके नी पेन, लाइक स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस, स्लो विंस, वी कैन से स्लो विंस इक्वल्स टू फॉरएवर चेंजेस. सो मैंने उनको एक चीज़ बताई थी कि लाइक अगर हम खुद को 1 साल देते तो आगे के जो लाइफ के 40 ईयर्स रहेंगे आगे वाले आने वाले, सो दैट बिकम्स ईजियर फॉर यू. सो यहीं पे उनका हमने फोकस किया था मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन एंड साथ में कंसिस्टेंसी पे. सो ये सारे प्रोग्रेस थे जो हमने इस पीरियड में किए हैं. सो वी केप showing up like every tired days, उनको like tiredness होती थी फिर भी she used to come for the workout. So and then moving forward, like here are more the diet patterns you can see on the screen. Basics, then I
started the carb cycling, then उसके बाद again I come with the lower carbs diet. So ऐसे हम switches करते थे बीच में with the minimum amount of protein from 25 grams से start के धीरे करके से 40 grams तक लेके moving for 70-80 grams तक we move to the protein intake in our diet with the balanced macros with the carbs, protein and fat. So ये सारी चीजें balance रखी थी इनके diet में. So these are the diet patterns of week 6 and week 8. So then the workout pattern of week 6 and week 8 यहाँ पे हमने थोड़ा like cardio functional mobility से switch करके cardio functional and training पे हमने ज़्यादा focus किया था यहाँ पे in this level. So this is the case and thank you so much for the listening everyone.